नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। 4 राज्यों में जीत के बाद बीजेपी ने गुजरात और हिमाचल का रुख कर लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शिमला पहुंचे। उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। मोदी जी की नीतियों को, मोदी जी के कार्यक्रमों को, मोदी जी के द्वारा चलाए जा रहे गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, उनको जो मुख्य धारा में महिलाओं को लाने का कार्यक्रम किया है, उस पर भारत की जनता ने और प्रदेशों की जनता ने मुहर लगाई है। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। और इसलिए हम कहते हैं, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मणिपुर में, गोवा में सरकार हमारी है और अब हिमाचल और गुजरात की बारी है। हमको उस ओर बढ़ना है, हमको उस ओर जाना है और उस ओर जाने के लिए हमको तैयारी करनी है। जिस तरीके से पिछले 5 सालों में काम हुआ है, उस काम को हमको याद रखते हुए और लोगों को बताते हुए जनता के बीच में जाकर के सारी बातों को रखना है। आज जब मैं यहां पर इस बात की चर्चा करता हूं तो मुझे खुशी होती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गुजरात के नर्मदा के एकता नगर में मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी के राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। There are multiple benefits of adopting alternative methods of dispute resolution. Mediation and negotiation at the pre-litigation stage are one of the most empowering methods of resolving disputes as they maximize the participation of stakeholders. But since ADR is designed around the participatory model, its adoption is going to break the existing barrier. Lawyers must pursue every possibility of pre-litigation settlement and advise clients to approach Lok Adalats for the greater benefit of the parties. Additionally, it is the responsibility of the parties who opt for this forum to commit and work towards the early resolution of their dispute. It should not be used as a mere delaying tactics. Lastly, judicial officers dispensing justice should not bring any adjudicatory flavor to the proceedings and must understand parties and their economic conditions with patience. We need skilled mediators to decide some significant issues during the process of mediation, particularly in a situation where settlement is fully going in favor of a particular party. What is the duty of a mediator if the settlement reached is patently unjust to the weaker party? Should the mediator be a silent spectator during such negotiations? These are just some of the questions which one must consider, particularly in a country like India with our diverse social fabric. The ideals of substantiative quality must be reflected in the resolution process as well. This conference is necessary to resolve these types of issues. I am reminded to quote from an English drama written by James Graham, "Money is fine, but data is power." These words are important for 21st century, wherein computing ability has increased by 1,000,000 times, while law regulates the same has not been able to catch up. The last 3 decades have seen a massive increase in processing power, the explosion of data, significant reduction in data management costs, and increased availability of sophisticated machinery and software. The rapid development of technology has resulted in increased complexity even within the legal and regulatory landscape. और इसी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अपने संबोधन में कहा कि विधानमंडल और न्यायपालिका हम अलग अलग हैं, लेकिन हमें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। We all know the very core of the rule of law and civilized society is the provision of equitable and timely justice, that the preamble where the soul of the Constitution lives starts and list of rights with the word justice. It shows how much importance the framers of the Constitution assigned to justice delivery system to our citizens. Our government, headed by Honorable Prime Minister Modi ji, is committed to speedy justice delivery system. And we all know how much our judges are working on that. With huge numbers of pending cases before various courts, from the lowest court to the Supreme Court,
it is urgently felt by everyone that we have to look towards the path of alternative dispute resolution. And on that regard, the topic chosen for this important conference is very, very timely and apt. बिहार विधान परिषद चुनाव परिणाम से आरजेडी और कांग्रेस उत्साहित हैं। इधर विधान परिषद चुनाव परिणाम पर सीएम नीतीश कुमार ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम चौंकाने वाले हैं। अब तो ठीक ही है। अब तो एनडीए का जब चुनाव होता है, जब जानते नहीं ना है आजकल ये कैसा चुनाव है। ये आम जनता का कोई वोट थोड़ी है, ये लिमिटेड लोगों का वोट है। और आप जान ही रहे हैं कि कैसे कितना कोई मेहनत करता है। कुछ जगह पर तो हम लोगों को आश्चर्य हुआ है, जहां पर कि उम्मीदवार जो था वो कह रहा था कि नहीं एकदम पक्का जीत रहे, लेकिन कोई रिजल्ट दूसरा होता है। तो पता नहीं क्या होता है। तभी सोच लीजिए, इसका तो एक रूप ही दूसरा है। इसका तो कोई वैसा चीज नहीं है। इसमें क्या है, पिछली बार भी क्या था, पिछली बार भी जो चुनाव हुआ था तो उसका तो याद करिए ना भाई। पिछली बार में उस समय तो हम लोगों का माने अलायंस था, आरजेडी वगैरह सब हम लोग थे, तो उसमें क्या था, तब बीजेपी को काफी सीट मिली थी। तो इस बार में कौन कितना जीतेगा इसके बारे में कुछ नहीं। तो इसलिए कुल मिलाकर के जो भी नतीजा है, अब जो भी इसके मतदाता हैं, अब उन्होंने जो भी मतदान किया है, तो जिनको भी जिताया है इसकी जिम्मेवारी उनकी है। तो जो भी जीते हैं सबको मेरी बधाई। रंगों को लेकर हो रही सियासत पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के झंडे में सफेद रंग नहीं है, इसलिए शांति नहीं है। देखिए, रंगों से कोई, ये तो 7 रंग है और 7 रंग से पता नहीं विभिन्न रंग बने हैं। लेकिन जो रंगों को यदि उसे केवल आप धर्म से जोड़ेंगे तो ये गलत बात है। अब हरा रंग तो सब सब्जी भाजी जितने प्रकृति है वो हरा ही है। भगवा रंग तो त्याग और तपस्या सर्वोच्च त्याग का परिचायक है। तो ऐसे अलग अलग रंग हैं। लेकिन ये बताएं भाजपा वाले कि कौन सा त्याग किया है भाई। तो हमारे साधु संतों का रंग है भगवा, जो सर्वोच्च त्याग का है। इन्होंने कौन सा त्याग कर लिया जो भगवा धारण कर रहे हैं, मुझे तो यही समझा दें। एक आध भाजपा वाले ये बताया कि उन्होंने फला चीज का त्याग किया है, इस कारण से मैंने भगवा धारण किया है। हमारे साधु संतों का है जो सब कुछ संसार त्याग देते हैं, घर बार त्याग देते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं, तब वो भगवा धारण करते हैं। ये सर्वोच्च त्याग का परिचायक है। कांग्रेस के झंडा में सबसे पहला भगवा ही रंग है। पहला रंग भगवा है, दूसरा सफेद है और तीसरा फिर केसरिया पहले, उसके बाद सफेद, उसके बाद हरा। ये लोग भी तो हरा रंग रखे हुए हैं, उसमें शांति नहीं है। बीच शांति जो सफेद है वो गायब है। भारतीय एनसीपी चीफ शरद पवार के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के मामले में गिरफ्तार 110 लोगों को शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया। सरकारी वकील ने आरोपियों की 14 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की। वहीं इससे पहले कोर्ट में इतने आरोपियों को एक साथ पेश करने की जगह को लेकर विभाग के एसीपी और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी कोर्ट का मुआयना करने पहुंचे थे। इस दौरान एक अधिकारी ने बताया कि आरोपियों को दिखाने के लिए जज को कोर्ट के बाहर बुलाया जाएगा। जज या तो खुद कोर्ट से बाहर आएंगे या उनके किसी स्टाफ को भेजेंगे। इतने आरोपियों की रिमांड गाड़ी में ली जा सकती है। मुंबई पुलिस ने बताया कि इस मामले में गिरफ्तार सभी आरोपियों का ब्लड सैंपल कलेक्ट किया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि किसी आंदोलनकारी ने शराब पी थी या नहीं। अबू धाबी स्थित समूह इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी IHC अडानी समूह की 3 ग्रीन एनर्जी कंपनियों में $2 अरब का निवेश करेगा। उद्योगपति गौतम अडानी के नेतृत्व वाले समूह ने एक बयान में कहा कि IHC अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में 3,850 करोड़ रुपए, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड में 3,850 करोड़ रुपए और अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड में 7,700 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। हालांकि समूह ने यह नहीं बताया कि IHC 3 फर्मों में कितनी हिस्सेदारी लेगी। AGEL और ATL और AEL के बोर्ड ने शुक्रवार को बैठक की और लेन देन को मंजूरी दी। इस निवेश के लिए शेयरधारकों और नियामकों से मंजूरियां ली जानी हैं। समूह ने कहा कि IHC और अडानी पोर्टफोलियो भारत, पश्चिम एशिया और अफ्रीका में कई रणनीतिक अवसरों में व्यापार साझेदारी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत आधे से भी कम हो गई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला का कहना है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने निजी अस्पतालों के लिए कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत 600 रुपए से घटाकर 225 रुपए करने का फैसला किया है। अदार पूनावाला ने कहा कि हमें ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि केंद्र सरकार के साथ चर्चा के बाद एसआईआई ने निजी अस्पतालों के लिए कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत 600 रुपए से घटाकर 225 रुपए प्रति खुराक करने का निर्णय लिया है। वहीं उन्होंने कहा कि 18 से अधिक उम्र वालों के लिए एहतियाती खुराक खोलने के लिए केंद्र के इस फैसले की एक बार वो फिर से सराहना करते हैं। यूपी चुनाव में करारी हार झेलने के बाद राहुल गांधी ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि चुनाव से पहले कांग्रेस बसपा के साथ गठबंधन करना चाहती थी। मायावती को सीएम पद का ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्होंने जवाब तक नहीं दिया। कोई राजनेता जैसे आपने देखा होगा, मायावती जी ने चुनाव ही नहीं लड़ा। हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए। बात तक नहीं की, बात तक नहीं की। जिन लोगों ने, कांचीराम जी ने, रिस्पेक्ट करता हूं मैं, खून पसीना देके दलित आवाज जो थी उत्तर प्रदेश की, उसको जगाया। कांग्रेस का नुकसान हुआ, वो अलग बात है, मगर उस आवाज को जगाया। आज मायावती जी कहती हैं कि मैं उस आवाज के लिए लड़ूंगी नहीं। खुला रास्ता दे दिया। क्यों? सीबीआई, ईडी। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हिमाचल प्रदेश में रोड शो के 2 दिन बाद पार्टी के बड़े नेताओं ने केजरीवाल का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। राजनीतिक जानकार इसे एक तरह से चुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी का हिमाचल प्रदेश में सफाया बता रहे हैं। वहीं इन बयानों का अरविंद केजरीवाल ने जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश की जनता को आम आदमी पार्टी पर भरोसा है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर बीजेपी के उन नेताओं को जवाब दिया जो हिमाचल में आपका सफाया बता रहे हैं। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि लोग मुझसे नहीं, जनता से डरते हैं। उन्होंने लिखा कि बीजेपी वालों, अगर ईमानदारी से जनता के लिए काम किया होता तो इतना खौफ ना होता, सीएम बदलने की नौबत ना आती, दूसरी पार्टियों के दागियों के पांव पड़ने की जरूरत ना पड़ती। आम आदमी पार्टी के हिमाचल प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी, सतीश ठाकुर और ऊना के अध्यक्ष इकबाल सिंह ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की अगुवाई में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। आप छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए अनूप केसरी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उन्हें चरित्रहीन तक बता दिया। खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट और अरविंद केजरीवाल जी से उसके डर का आलम ये है कि अरविंद केजरीवाल जी के बारे में कुछ भी बोलने के लिए रात को 12 बजे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के प्रेसिडेंट और उनके केंद्रीय मंत्री और हिमाचल के भावी मुख्यमंत्री उम्मीदवार, हिमाचल के जो भारतीय जनता पार्टी जिनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाने जा रही है, वो केंद्रीय मंत्री और साथ साथ सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रात को 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी के एक ऐसे व्यक्ति को अपनी भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराते हैं रात को 12 बजे, जिसके खिलाफ आम आदमी पार्टी को शिकायतें मिली हुई हैं कि वो महिलाओं से गंदी बात करता था, महिलाओं के खिलाफ उल्टा सीधा बोलता था, तुच्छी बातें करता था महिलाओं के बारे में। ऐसे आदमी को, उसकी रिकॉर्डिंग्स हैं, ऐसे आदमी को जब आम आदमी पार्टी ने बुला के कहा कि हम आपके खिलाफ जांच करा के
कार्रवाई करेंगे। और आज जिसको हम पार्टी से निकालने वाले थे, वैसे महिलाओं के खिलाफ टुच्ची और गंदी बात करने वाले व्यक्ति को गले लगा के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनकी पार्टी के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी, जेपी नड्डा जी उधर, और हिमाचल के भावी मुख्यमंत्री उम्मीदवार अनुराग ठाकुर जी, इन्होंने रात को 12 बजे अपनी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में उसको गले में बाहें डाल के उसका स्वागत किया है। तो सबसे पहले तो इससे यही साबित होता है कि हिमाचल की जनता के दिल की आवाज़ भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गई है, वरना दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को रात को 12 बजे एक चरित्रहीन व्यक्ति को अपने साथ गले लगाने की ज़रूरत पड़ गई। एक केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी के, जो भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल में मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, भावी मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, उनको रात को 12 बजे एक ऐसे व्यक्ति जिसके ऊपर चरित्रहीन होने के आरोप लगे हुए हैं, आम आदमी पार्टी जिसको निकालने वाली थी आज, उसको रात को 12 बजे गले लगाया। तो एक तो बौखलाए हुए तो बहुत हो, डरे हुए तो बहुत हो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहते हो और रात को 12 बजे बौखलाहट में एक चरित्रहीन व्यक्ति को अपने गले से लगा लेते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको 2 मिनट के लिए अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कुछ कहने का मौका मिल रहा है। और एक चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति को आपने लिया है उसकी सही जगह एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी में ही है। भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जहां ऐसे चोर उचक्कों को, महिलाओं के खिलाफ गंदी गंदी बातें करने, टुच्ची बातें करने वाले, गिरी हुई हरकतें करने वाले, इस तरह के बलात्कारियों को, इस तरह के चोर उचक्कों को, महिलाओं का अपमान करने वाले ऐसे लोगों को लिया जाना चाहिए और ले सकते हो, उनकी जगह वही है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में ही ऐसे लोगों की जगह है जहां जिसको दूसरी पार्टियां इसलिए निकाल रही हों कि उसने महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है, टुच्ची बातें कही हैं, उसको आप गले लगा रहे हो। तो रात को 12 बजे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हिमाचल पहुंचते हैं। रात को 12 बजे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी हिमाचल पहुंचते हैं। अनुराग ठाकुर जी मतलब हिमाचल के भावी मुख्यमंत्री चेहरे हिमाचल पहुंचते हैं और रात को 12 बजे जाके एक ऐसे व्यक्ति को पार्टी ज्वाइन कराते हैं जिसके ऊपर इतने आरोप हैं, जिसको आम आदमी पार्टी आज सुबह निकालने ही वाली थी। तो हम उसकी भारतीय जनता पार्टी को बधाई देते हैं। और मुझे भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ताओं से और ख़ास तौर से महिला कार्यकर्ताओं से सहानुभूति है कि आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कितने गिरे हुए, कितने चरित्रहीन लोगों को अब पार्टी में लेने लगे हैं, कितने बुरी तरह से बौखला गए हैं, ये आप खुद देख लीजिए। सच है, हिमाचल की राजनीति बदल रही है। लेकिन उनका कहना है कि अनुराग ठाकुर ने उसके बाद बयान दिया, उन्होंने बाइट दी कि आम आदमी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं पे विश्वास नहीं कर रही है, जो इतने दिन से काम कर रहे हैं उनको काम नहीं दिया जा रहा है और इसलिए लोग बीजेपी में। आम आदमी पार्टी का स्पष्ट सिद्धांत है कि किसी के खिलाफ भी, महिलाओं के खिलाफ किसी तरह की टुच्ची हरकत करने के, टुच्ची बात करने के, गिरी हुई हरकत करने के बात आएगी तो 1 मिनट आम आदमी पार्टी उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसे में आम आदमी पार्टी तो उसको निकालने ही वाली थी, उन्होंने उसका स्वागत किया है। तो भारतीय जनता पार्टी में ही ऐसे लोगों की जगह हो सकती है। हमें भी खुशी है कि बीजेपी अपने असली। हिमाचल प्रदेश में आप छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम नेताओं के बीजेपी में शामिल होने के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। मैं सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष, वहाँ के संगठन मंत्री और वहाँ के ऊना के अध्यक्ष और ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता जो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं, उनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने अपना समय निकालकर इन सब का स्वागत भी किया और पार्टी की ज्वाइनिंग भी करवाई। देश की सबसे बड़ी पार्टी में आज आम आदमी पार्टी का विलय हुआ है, एक तरह से मैं कहूं, क्योंकि उनके अध्यक्ष, संगठन मंत्री सब लोग आ गए। तो दूसरी तरफ से देखा जाए, अगर आप उनकी बात सुनेंगे तो जिन लोगों ने 8 साल तक आम आदमी पार्टी के लिए काम किया, एक कार्यकर्ता के रूप में, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, उनकी भी अनदेखी की गई। उनकी तरफ देखे तक नहीं अरविंद केजरीवाल जी। ये हिमाचल का अपमान था और उनके कार्यकर्ता का भी अपमान था।
और इस स्वाभिमान की लड़ाई उन्होंने लड़ने के लिए, और मोदी जी के नेतृत्व में जो शानदार काम भारत में हुआ है उसको देखकर, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो स्वयं उनको स्वागत किया है, इसके लिए मैं इन दोनों का बहुत आभार भी प्रकट करता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है इनके आने से भाजपा को बल भी मिलेगा, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं देखने को मिलता है जो अरविंद केजरीवाल जी की और आम आदमी पार्टी की झूठ की राजनीति है वो सबके सामने आई है। कैसे इनका भांडा फूटा है, कैसे झूठे वायदे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और सच्चाई ये है कि केवल अपना ही देखते हैं। जिस तरह से अभी चुनाव जो हुए उसमें प्रचंड जीत भाजपा को मिली है, उस तरह से उनके दावे कहीं ना कहीं फीके दिखाई दे रहे हैं हिमाचल को। देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं, मैं उत्तर प्रदेश का सह प्रभारी भी बनाया गया था। उत्तर प्रदेश में शरद पवार के घर पर हुए हमले पर संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये कोई आंदोलन नहीं था, ये एक साजिश थी। पवार साहब के घर पर जो लोग गए थे वो खुद को अपने आप को अगर एसटी कर्मचारी मानते हैं तो मैं मानता हूँ ये आंदोलन नहीं था, ये कोई साजिश थी, और उस साजिश के पीछे सूत्रधार कौन है राजनीति, उसका रहस्य भी जल्दी सामने आ जाएगा। एक तो पवार साहब का ये एसटी का जो स्ट्राइक है उससे कोई संबंध नहीं है। सरकार ने नेताओं से बातचीत कर ली और न्यायालय ने भी उस बारे में एक दिशा दी। सभी मांगे लगभग उनके सरकार मान चुकी है। फिर भी महाराष्ट्र का राजनीतिक और सामाजिक माहौल खराब करने की कोशिश कोई कर रहा है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।